dear students, how are you all? So welcome again Maximus. So it is a digital learning platform to provide you quality education, right? So here in this class, me and my team prepare a quality content for you to provide you best of the best education, and right. So this is not going to clear all your concept. This is also going to make you learn very fast. Okay. So in today's class, we are again going to start with the same topic that we already studied in previous class. We have studied previous class we study learn the concept of the understanding of log, right? The exponential and function and logarithmic function, and we learn the definitions of log, right? And we also try to learn log in exponential function by the graphical method, right? So in this today's class we are going to learn about the properties of logs, and we also try to do so many questions of log by the use of definition, and in today's class we are going to learn about try to learn about the properties of log, and properties के through we'll try to learn the concept of log, and again we are going to do so many questions of log, right? So let's begin the topic again, directly go to the topic. So log already started है ना, definitions हमने already पढ़ लिया था. What is the definition of log? Log can be है ना, log of any number है ना, any real positive number or base a है ना, or base a can be written as a है ना, can be written as a log of x to the base a can be written as a y and any number y. So this can be a should be greater than 0 and a should not be 1. ठीक है, हमने ये भी समझा कि 0 and 1 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है. And y, the exponent cannot be 0 because if exponent is 0, value remain going to be what this is 1. ठीक है. So the domain already हमने पढ़ा, domain is x should be greater than 0 and means x should be 0 to infinity and then any number can be x. ठीक है. So this already we learn है ना, and any number can be represented in a two form. First is the logarithmic form and second is the exponential form and second is logarithmic form. ठीक है. Hope you if you learn this all things है ना, हमने ये already last class में किया था. तो let's move ahead again है ना, हम directly new concept में move करते हैं. What is the new concept? Graphical understanding we already learned है ना, हमने already ग्राफ को draw किया था, ग्राफ के थ्रू हमने लर्न कर किया था concept को. हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, तो लेट्स डिवाइड द ग्राफ है ना ऑफ लॉग. इसको ठीक से करते हैं. अगर थोड़ा फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ना, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया था, लॉग और एक्सपोनेंट के ग्राफ को हमने डिजाइन किया था. ठीक है. दिस इज 1 एंड दिस इज 1. ठीक है. तो दिस इज नॉट विजिबल है ना. तो लॉग ग्राफ हमें कैसे आया था, सो व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कैसा आ रहा था, और व्हेन a इज लेस देन 1, राइट. so when a is less than 1 and greater than 0, तो कुछ इस तरीके से आ रहा था ना, एंड ये वर्टिकल एसिम्पटोट कुछ बना रहा था, राइट. एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसा बना रहा था, तो ये कुछ ऐसा बना रहा था, राइट. और दिस फॉर a ग्रेटर देन 1, ठीक है, और फॉर a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से बना रहा था. ठीक है. एंड वी ऑलरेडी करा कि अगर ओरिजिन से कोई अगर लाइन अगर क्रॉस करूँ, अगर वो मिरर जैसा लाइन हो, तो दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस लॉगरिथमिक फंक्शन गोइंग टू बी मिरर इमेज काइंड ऑफ थिंग, राइट. तो ये ऑलरेडी हमने लर्न किया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट. तो आज हम क्या करने वाले, प्रॉपर्टीज को लर्न करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉपर्टीज लर्न किया था, एंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस, हमने इंडाइसिस के प्रॉपर्टीज को यूज किया था, है ना, बाय यूजिंग द डेफिनेशंस. ठीक है. तो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी हमें बहुत ही यूज आया था, बहुत ही काम आया था टू अंडरस्टैंड द लॉग. ठीक है. अब सेम टू सेम हम टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. ठीक है. मैंने क्या बोला था बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग में कि जॉन मैकबियर ने क्या किया था, जब लॉग बना था तो कंसेप्ट लॉग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो लॉग का जो बेस है कि बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को हमने जैसे लॉग से सॉल्व किया था. ठीक है. तो बेसिक पर्पस इसका क्या था कि टू बहुत मल्टीप्लिकेशन को सम्स में है ना, एडिशन में कन्वर्ट करना, एंड डिवीजन वाले प्रोसेस को सब्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना कॉन्सेप्ट को. ठीक है. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी है ना. तो अगर आप देखोगे तो है ना, प्रॉपर्टीज अगर देखोगे है ना, तो
पहले तो सबसे पहले इक्वलिटी में लॉग हमने लॉग की इक्वलिटी हमने लर्न किया ना, बाय डेफिनेशन हमने लर्न किया था। क्या लर्न किया था? अगर मैं इक्वलिटी की बात करूं, log टू द पावर a टू x टू द बेस a है, तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा था कि दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो दोनों से इक्विवेलेंस है, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। अब देखो इसमें एक ना समथिंग प्रॉपर्टी ये थी, पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, पहला मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की रूल है। सो log ऑफ बेस a, राइट, this is a x and y, right, x and y, this is written as a log of a x plus log of base a to the power 2 log of y to the base a, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे x and y, यहाँ पे हम इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं ना कि प्रूफ कैसे किया है ना। मान लो कि log ऑफ ये जो है दिस टर्म कैन बी कंसीडर्ड है, मान लो कि ये टर्म क्या है, ये टर्म a है एंड ये टर्म b है, ठीक है ना। इसको मैंने नॉट a एंड b, टू कॉल a एंड b ऑलरेडी यूज हमने किया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई भी टर्म मान लो है ना, दिस इज p एंड ये q है टर्म, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन है, दिस टर्म कैन बी रिटन है a टू द पावर p इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड दिस टर्म कैन बी रिटन है a टू द पावर q इक्वल्स टू y, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, है ना। तो आप देखोगे x और y की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a टू बेस a, एंड x की वैल्यू कितनी आ रही है a टू द पावर p, एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है a टू द पावर q, ठीक है। तो आप देखोगे तो क्या हो सकता है ना, log ऑफ बेस a, ठीक है, एंड हियर दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर p प्लस q, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं तो आप देखोगे तो अगर इसको मैं मान लूँ, है ना, इसको मान लूँ मैं, है ना, तो अगर इसको m मान लूँ तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर, है ना, m इक्वल्स टू a टू द पावर p प्लस q, ठीक है। तो आप देखोगे p प्लस q से वैल्यू तो, है ना, ये कितने, तो m इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच, m इक्वल्स टू p प्लस q, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सम के रूप में हम सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यही था कि इसको हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ ना कुछ कंसीडर किया और बाय दैट वे वी ट्राई टू सॉल्व, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगेन p प्लस q करो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ log a प्लस कैन बी रिटन एज log b, राइट। सो दूसरा हम समझते हैं, क्वोशिएंट रूल को समझते हैं। log ऑफ a x अपॉन y कैन बी रिटन एज log ऑफ a x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a, ठीक है। अब इसको भी हम ट्राई टू सॉल्व करते हैं सिमिलर मेथड से, ठीक है। दूसरा क्या है, log ऑफ a x अपॉन y कैन बी रिटन एज log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a, ठीक है। हमने क्या किया, अगेन इसको मान लो p, इसको मान लो q, ठीक है। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज a टू द पावर p इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज a टू द पावर q इक्वल्स टू y, ठीक है। अब x y की वैल्यू हमें निकल गई है, यहाँ से निकल के आ गया है। तो एलएचएस में मैं x y के वैल्यू को पुट करता हूँ, तो व्हाट इज x इज a टू द पावर p एंड व्हाट इज y a टू द पावर q, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर p माइनस q, ठीक है। तो ये p माइनस q निकल गया है, तो p ऑलरेडी गिवन है, q ऑलरेडी गिवन है, सो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस q, है ना। सो p व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज p एंड दिस इज q, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। आप देखो तो सिंगल काइंड ऑफ प्रोसेस ही है ना, एवरीवेयर, है ना। अब तीसरा देखो, पावर का इक्वेशन लर्न करते हैं, ठीक है, पावर वाले इक्वेशन को। तीसरा जो है व्हाट इज गिवन, log ऑफ x टू द पावर n बेस a कैन बी रिटन एज n log ऑफ x बेस a, है ना, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब मान लो कि इस टर्म को लेट्स कंसीडर दिस टर्म एज, आप मान लो ये टर्म कुछ x है, ठीक है, p है, ठीक है। सो अगर मैं मान लो कि p है, तो लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। तो अगर ये मैं मान लो कि p है, ठीक है, अगर ये p है तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर p इक्वल्स टू x टू द पावर n, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, है ना। तो a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं x टू द पावर n अपॉन p, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है ना। उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दिस विल कम्स टू n, दिस कैन बी रिटन एज, ये इसे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ
बेस ए एक्स टू द पावर एन कैन बी रिटन एज एन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एन, ठीक है। सिमिलर अगर रेसिप्रोकल फंक्शन है तो एक्स क्या हो रहा है, अगर रेसिप्रोकल में है तो लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स, अगर बेस ए है तो दिस कैन बी रिटन एज ए लॉग ऑफ एक्स टू द पावर -1 एंड दिस इज बेस ए, सो -1 कम्स हियर, तो कितना वैल्यू निकल जाएगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ लॉग एक्स एंड बेस ए, ठीक है। तो आप लॉग ऑफ बेस हमें समझ में आ गया है ना, सो दिस इज द बेस हियर ई, ठीक है। ए अगर बेस एंड नंबर बोथ सेम है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि लॉग ऑफ ए टू द पावर ए नंबर ए एंड बेस ए अगर ये है, उसको अगर एक्स मानोगे तो क्या निकल के आएगा, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, तो मैं बोलूँगा अगर ये अगर बेस अगर सिमिलर बेस में है मैं प्रूफ कर देता हूँ ना, तो दिस कैन बी रिटन एज ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। लॉग ई टू द पावर ए 1 होगा, है ना। एंड अगर बेस अगर 0 हो तो कोई भी नंबर बेस अगर 0 करोगे 0 होगा, एंड लॉग ए अगर करोगे लॉग ए की वैल्यू किसी भी नंबर के लिए 0 होती है। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ ना, ई क्या है, ई हमने एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट में हम ई हमेशा ऑलवेज हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पढ़ते हैं ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर एक्स पढ़ते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है ई टू द पावर एक्स भी है, ये एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.718 होता है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसका भी समथिंग वैल्यू होता है, दैट इज वैल्यू इज 2.718 होता है, ठीक है। तो जो हमने ए टू द पावर एक्स का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसका ग्राफ भी सेम होगा जैसे हमने 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ इसका भी 2.718 का भी आएगा, ठीक है। तो होप द ना प्रॉपर्टीज इज क्लियर टू यू, प्रॉपर्टीज को याद करना होगा ना, अंडरस्टैंड तो हमने समझ लिया कि कैसे इसको थ्योरी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है अब नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये हमें तो एक बार प्रूफ तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, हमें आना ही चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस प्रॉपर्टीज को फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे अपने क्वेश्चन व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो इफ दिस इज क्लियर टू यू तो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट। चलो क्वेश्चंस करते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस विल ट्राई टू डू, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमने अभी लर्न किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सो दिस इज समथिंग गिवन लॉग ऑफ, अगर बेस नहीं है तो समझ लो क्या ना कि बेस एवरीवेयर इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द 9/14 प्लस log of 35/24 माइनस log of 10/16, सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या लर्न किया है, अगर पॉजिटिव अगर साइन हो दो लॉग के बीच में तो दैट इज नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड, राइट, और नेगेटिव हो तो नंबर कैन बी डिवाइड, राइट। ऐसा कुछ हमने लर्न किया है जस्ट अभी, ठीक है। अगर मैं इसको अगर एक ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में डालता हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज ए log of 9/14 इंटू 13/24, ठीक है, ठीक है, माइनस log of 15/16, ठीक है। अभी हमने जस्ट कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या था वो प्रॉपर्टी कि log of a टू द पावर 1/x, इसमें हमने क्या पढ़ा था, सो दिस हमने इसको प्रूफ क्या किया था, log of a x पावर -1, ठीक है। सो अगर रेसिप्रोकल फंक्शन में कोई हो तो दिस कैन बी रिटन माइनस ऑफ a टू द पावर x, ठीक है। ये कुछ रेसिप्रोकल में अगर कर देता हूँ तो दिस माइनस विल गेट कैंसिल एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव प्लस, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे अगर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, log of 9 टू द पावर 40 इंटू 13 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 प्लस दिस विल बी log of प्लस 16/15। ये कैसे मैंने प्लस कन्वर्ट किया, हमने उस वो प्रॉपर्टी को यूज किया, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको रेसिप्रोकल फंक्शन को मैंने रेसिप्रोकल करके मैंने इसको प्लस कर दिया है। अब हमारे पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो दोनों नंबर को अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने क्या लर्न किया था प्रॉपर्टी जस्ट नाउ, हमने जस्ट नाउ प्रॉपर्टी लर्न किया था, अगर log of x प्लस log of y अगर हो, ठीक है, log of y हो, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज log of x into y। हमने ये प्रॉपर्टी लर्न किया, ठीक है। हमने x into y से x plus y पे गया था, बट दिस इज a plus given so we can multiply also, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 9/14 into 35/24 into 16/15,
15, ठीक है। तो अगर ये अगर क्लियर हो तो अपन इसको कुछ ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, है ना। तो व्हाट कैन वी डू, है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, ठीक है। सो विल सिंप्लीफाई हियर, ओह नो नो नो, कैंसिल, करोड़ हो जाती है, है ना। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस टर्म, हियर। चलो अपन इसको 9/9 so this is the 9/14 into 35/24 into 16/14. this simple सा तो चीज है. So this can be written as 3 into 3 and this can be written as 7 into 2, ठीक है, into this can be written as 3 into 5, this can be written into 3 into 2 to the power 3, ठीक है, 8 into 3, ठीक है. So this can be written as 2 to the power 4, this can be written as 2 to the power 5. ये तो and this can be 7 into 5, this is 7 into 5 not 3 into 5, है ना. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 into 5, ठीक है. तो this is 3 into 5, this is 3 into 5, ठीक है. 5 से 5 कैंसिल होकर लिख रहा हूँ, है ना. और ये 2 to the power 3 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रिमेनिंग बचा वहाँ पे, ठीक है. ये अगर 2 है तो 2 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है. तो अपने पास 2 3 है, तो 1 3 1 3, तो 1 3 1 3 गॉट कैंसिल, ठीक है. हमारे पास एक 7 भी है, 7 से 7 कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है. तो बच रहा है कितना, बच रहा है 1, ठीक है. दिस इज नॉट 0, सॉरी, दिस इज 1, ठीक है. ये कुछ 1 आ रहा है, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज log of 1. log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है. हमने जस्ट नाउ अभी पढ़ा था, है ना, कि अगर ये नंबर क्या डिफरेंट बाय डेफिनेशन, अगर ये अगर नंबर अगर 0 है, ठीक है, तो ये नंबर अगर 1 है ना, तो ना तो 0 होना चाहिए ये नंबर, ना ये नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है. अगर ऐसे पूछे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व, है ना. और कितना वैल्यू निकल का है, वैल्यू गॉट 0, ठीक है. तो बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया. हमने कितने प्रॉपर्टी को यूज किया, तो पहले तो एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया, है ना, और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को भी यहाँ यूज किया, है ना. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को भी यूज किया. ये यूज किया सब्ट्रैक्शन नहीं यूज किया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को. हमने क्या किया, हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को यूज किया. रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से चीजों को कन्वर्ट किया, राइट. उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन प्रॉपर्टी को यूज करके मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड वी गॉट द रिजल्ट, ठीक है. होप द फर्स्ट क्वेश्चन यू अंडरस्टूड. लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. डू ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ओनली. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस है ना, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. विल डू अगेन, है ना, बस फर्स्ट विल डू क्वेश्चन नंबर 3 देन विल डू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना. चलो दिस इज व्हाट, दिस इज log 5 to the base 10 into log 20 to the base 10, ठीक है, प्लस log 2 to the base 10 to the whole square, ऐसा कुछ है, ठीक है. इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को देखते हुए यार हमें क्या समझना है, बेस तो हमें चारों तरफ सेम है, ठीक है, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में हमें कुछ कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो हाउ कैन वी डू, व्हाट वी कैन डू, मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है log ऑफ 2 के फॉर्म में, कुछ नहीं है, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कुछ सम है, ठीक है. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा उलटफेर ना करूँ तो व्हाट वी कैन डू, है ना, मैं क्या करता हूँ ना, एक अपन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ना. इसको अलग ऑपरेट करता हूँ मैं, इसको अलग ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ ना. पहले इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है. तो ये दोनों एक साथ ही करते हैं, ठीक है. दिस कैन बी रिटर्न एज ए log ऑफ 10 कैन बी रिटर्न एज ए, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ ना, 5 है ना, 10/2 मैंने कर दिया, इनटू क्या लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैंने क्या किया, log ऑफ बेस 10, 20 को मैं 10 into 2 कर दूँ क्या, है ना. तो कुछ तो सिमिलर आ जाएगा, है ना. तो चलो ऐसे ही करते हैं, ट्राई करते हैं ऐसे करके, है ना, कुछ निकलता है क्या. सो दिस इज पावर 2. तो अगेन ये कुछ तो अब डिवीजन है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना.
तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 है ना, तो बेस एंड नंबर को सेम टू सेम आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, राइट। होप यू है ना, दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज log ऑफ 2 बेस 10 है ना, ये तो कुछ एक टर्म बन रहा है, ठीक है। और दूसरा कुछ, अरे ये भी कुछ ना कुछ ऐसे ही बन रहा है ना। सो दिस इज log ऑफ 10 टू बेस 10 प्लस यहाँ पे कुछ प्लस आ रहा है, log ऑफ 2 टू द बेस 10, ठीक है, ऐसा आ रहा है, प्लस log 2 टू द पावर 2 एंड बेस 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब ये जो टर्म है, क्योंकि बेस एंड नंबर दोनों सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस log ऑफ, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। एंड अगेन log, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगेन दिस इज गोइंग टू 1, क्योंकि बेस एंड नंबर दोनों सेम है, ठीक है। तो दिस अगेन कैन बी रिटन एज 1 प्लस log ऑफ 10 बेस टू द पावर 10, ठीक है। अब ये देखोगे तो दोनों प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के फॉर्म में ये कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। log 10 बेस 10 होल स्क्वायर, ये कुछ a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। सॉरी यार, है ना, log ये कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, तो अपन a माइनस ए स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस log ऑफ बेस 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है ये, प्लस दिस कैन बी रिटन, दिस ऑलरेडी गिवन log 10 बेस log 2 बेस 10, तो ये प्लस माइनस आ रहा है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, सो वी गॉट डायरेक्टली गॉट द वैल्यू आंसर 1, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 1, ठीक है। तो ये समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, है ना। हमने क्या किया, बस कुछ थोड़ा सा ट्रिक था, ट्रिक को हमने कन्वर्ट किया, 5 को हमने 10/2 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। जैसे हमने 10/2 में कन्वर्ट किया एंड 1020 को क्या किया, 10 into 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो दिस है ना, ये क्वोशिएंट रूल में एंड दिस इज ना एडिशन रूल में ये कन्वर्ट हो गया, तो दिस बिकम्स a माइनस बी एंड a प्लस बी, है ना। a माइनस बी a प्लस बी आया, तो इससे 1 माइनस log 10 log 2 10 बेस 10 होल स्क्वायर हो गया, प्लस log a, बोथ गॉट कैंसिल, तो वी गॉट द आंसर 1, ठीक है। तो बाय दिस प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 वी ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, है ना, कि प्रॉपर्टीज में कैसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 2, है ना। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और अलग से क्वेश्चंस दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। तो लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 into log 16/15, तो ये मैं डायरेक्टली मैं प्रोसेस करता हूँ, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 16/15 टू द पावर 7, हमने ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था कि n टू द log a पावर b बेस a, है ना, बेस a नंबर b, सो दिस कैन बी रिटन एज log a b टू द पावर n, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी लर्न किया था, सो आई हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी हियर डायरेक्टली, ठीक है। 7 यहाँ पे 7 को मैंने के पावर में डाल दिया, ठीक है। प्लस मैं अगेन इसमें भी सेम टू सेम करता हूँ, log ऑफ 25/24 पावर 5 कर देता हूँ, ठीक है। सिंगल प्रॉपर्टी अगेन सेम टू सेम, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सिंगल प्रॉपर्टी को log ऑफ 81/80 पे पावर 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, बट अब देख रहे हो प्लस 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 तीनों है ना, तो दिस ऑल बिकम, ये सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 16/15 टू द पावर 7 into 25/24 टू द पावर 5 into दिस कैन बी रिटन 81 टू द पावर 80, ठीक है, पावर 3। अब हमें इस तीनों टर्म को बस सिंप्लीफाई करना, बट वी विल गेट द वैल्यू, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, so let's simplify this. So this is a what, 16 can be written as a 2 to the power 4, ठीक है। अगर इसको 2 to the power 4 लिखता हूँ तो 4 into 7, so this can be written as 2 to the power 28, ठीक है ना, क्लियर, राइट। तो this 15 can be written as a 3 into 5, so this will be 3 to the power 7 into 5 to the power 7, डायरेक्टली मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। this 25 can be written as a 5 to the power 2, ठीक है। So this will be 5 to the power 10, ठीक है।
and this 824 can be written as 3 into 8, राइट। तो 3 to the power 5 तो कर देता हूँ मैं, है ना, और 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है, 2 to the power 3 to the power 5, so this will be 2 to the power what 15, ठीक है, into so 81 can be written as 3 to the power 4, right, so 3 to the power 4 into, so this will be 3 to the power 12, and 80 can be written as 2 to the power 3 8 into 2 means 2 to the power 4 can into 5 16 into 5, ठीक है, so 2 to the power 4 into power 3, so this will be 4 to the power 3, so 12 to the 2 to the power 12 into, and क्या था 5 था, and 5 to the power 3, ठीक है, 5 to the power 3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन, है ना, तो नीचे क्या बेस क्या 15 है और 2 है ना, so 27, तो मैं क्या करूँ 27 को तो हटा देता हूँ, है ना, 18 को क्रॉस करके 1 लिखता हूँ, 1 बचेगा, सिर्फ ओनली 2 बचेगा अब हमारे पास ऊपर में, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 7 है 3 to the power and 5 है, 7 plus 5 12, ठीक है, so this entire 12 will get cancelled, ठीक है। 5 में हमारे पास 7 है, 5 में हमारे पास 3 है, so 7 plus 3 is 10, so ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। बट देखोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 ही है, इतना वैसा नंबर बच रहा है, ठीक है, तो इससे वैल्यू ऑफ log of 2 ये हमारे पास बच रहा है, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी log of 2, ठीक है, बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है, सही करते वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एक तो एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी को यूज किया, राइट, दूसरा क्या किया कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके फिर एडिशन के प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी एंड एडिशन के रूल को हमने यूज किया, एंड वी ट्राई टू, है ना, हमने कोलेट किया, एक टर्म जो था उस टर्म को हमने, एक्सप्रेशन को हमने राइटली हमने सॉल्व किया, है ना, एंड जैसे क्योंकि बहुत सारा अगर मल्टीप्लिकेशन पावर आवर करते तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती, हमने सिंप्लीफाई कर दी पावर से, है ना, इंडाइसिस के प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व किया, एंड वी गॉट द वैल्यू, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल 3 क्वेश्चंस, है ना, प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन, है ना, एंड लेट्स रिवाइज मोर एंड मोर, है ना, चलो। तो वी हैव वन बिग क्वेश्चन, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन है दिखने में तो बहुत ही, है ना, डेंजरस काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट लेट्स फोकस ऑन द बेसिक्स, है ना, बेसिक्स पे फोकस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वी हैव द क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्यूब रूट में कुछ है ऐसा बड़ा सा टर्म, है ना, 5 to the power 1 upon log 7 to the power 5 ऐसा कुछ है ना, और क्या है, और है हमारे पास प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में माइनस में कुछ है log of 0.1 to the base 10, ऐसा कुछ है, बड़ा सा टर्म है, ठीक है। हमें इस वैल्यू को निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है और इस वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, हम बेसिक को यूज करते हैं ना, बेसिक से ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 1/7.5 है, ठीक है, अगर मैं उसको चेंज कर दूँ ना, बेस को 5 कर दूँ, एंड जो नंबर हमारे पास 1/log5 to base 7 है, अगर मैं बेस को अगर इंटरचेंज कर दूँ तो 1 जो ये टर्म है दैट विल बी, है ना, रेसिप्रोकल, हमने रेसिप्रोकल जो प्रॉपर्टीज को लर्न किया था, log of a 1/x को हमने क्या किया था, हमने इसको क्या कर सकते हैं माइनस, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ माइनस a to the power x, ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है ना, बेस को हमने चेंज किया, नॉट हमने क्या किया, बेस को चेंज किया, है ना, बेस के इसको हमने चेंज कर दिया, है ना, बाय बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, है ना, इसको बेस को चेंज करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 to the power, है ना, log 7 by base, है ना, 7 ऐसे कुछ लिख, 5 log 7 base 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इधर आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। सो हियर दिस इज 1, दिस इज स्क्वायर रूट, ठीक है, तो दिस इज माइनस log 0.1 को क्या लिखते हैं 1.10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन है ना, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो अभी हमने बोला कि log of a
log of a base b, तो दिस कैन बी रिटर्न एज, है ना, अगर ये चीज़ है मेरे पास तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस log a टू द पावर x, है ना, x टू x बेस a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके उस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगेन 5 पे पावर log ऑफ 5 ये है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 7, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 7 डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बेस एंड पावर पे बेस जो है ना सेम है, बोथ आर सेम, तो दिस विल बी 7 एंड दिस कैन बी रिटर्न एज -1, ठीक है। सो दिस विल बी 1/-1, ठीक है। सो दिस विल बी 1/-1 अंडर -1 इंटू -1, ठीक है, माइनस इंटू -1, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सो माइनस में 1 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 7 + 1, ठीक है, इंटू 1, तो ये तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दिस विल बी 3 टू द पावर 8, 3 क्यूब रूट 8, सो दिस 8 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 3 एंड 3 कैन बी रिटर्न एज 3 कैंसिल हो गया, दिस इज 2, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने बेसिक को यूज किया, ठीक है। पहले हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी को यूज किया, बेस को चेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सो वी गॉट दैट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, रेसिप्रोकल नंबर वाला जो था उसमें हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, सो माइनस माइनस प्लस हो गया वो, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यू, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज 2, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज किया, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने यूज किया, ठीक है, बेस को रिवर्स कर दिया, करेक्ट। सो यू लर्न दिस थिंग, है ना। सो इफ यू लर्न दिस थिंग, लेट्स डू सम अनदर क्वेश्चन, ठीक है। So we have the big question, है ना, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। So what is the question? Question is log of 2 1 upon, है ना, if n is greater than 1, and n तो greater than ही 1 होगा, है ना, otherwise log will not be defined, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखता हूँ ना पहले। So this question is 1 upon log n to the base 2 plus 1 upon log n to the base 3 plus log 1 upon log n to the base 4, ऐसा कुछ आ रहा है, प्लस 2 1 upon log n to the base 53, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग दिख रही है, ये चीज दिख रहा है कि अपने पास ये जो बेस है 2 3 4 5 253 तक मूव कर रहा है, ठीक है। एंड द नंबर है दिस, एंड दिस इज द कांस्टेंट, ये नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें इस नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, तो हमने अभी जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी को यूज किया, log 1/x हो, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, अगर बेस को चेंज कर देता हूँ, है ना, अगर बेस अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, सॉरी नॉट दिस प्रॉपर्टी, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि log अगर a टू द पावर x है, तो आई कैन राइट दिस एज ए 1 upon log x टू द पावर a, है ना, a टू द बेस ax कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली अगर मैं बेस अगर चेंज कर दूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज log, ठीक है, n बेस 2 टू द बेस n प्लस log 3 to the base n plus log 4 to the base n, and that can again be written as a log 53 to base n। अब ऐसा कुछ दिख रहा है ना, बेस सब सिमिलर है, बेस सेम है, तो वी कैन यूज हियर व्हाट, वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली जो ये है प्रॉपर्टीज है, दिस विल बी 2 into this will be 3 into this will be 4, this will be 5, this will be 6, so 1 to 3, ठीक है। ये हमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं इस टर्म को, ठीक है। तो 2 into 3 into 4 into 5 into 6 अगर कब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, इसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ। सो ये इस टर्म को वी आर गोइंग टू यूज एज ए 53 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए log ऑफ 53 फैक्टोरियल टू बेस n, है ना। सो इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने अगर ये कर दिया, तो अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 upon log बेस 53 फैक्टोरियल टू द n, ठीक है। सो वी गॉट द प्रूफ, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट। मैंने ये प्रॉपर्टी वाली, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया, और कुछ भी नहीं था, है ना।
ये जो टर्म है 53 फैक्टोरियल वाली टर्म, दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो दूसरा करते हैं। अगेन we have something है ना, अगेन स्क्वायर रूट, है ना, ऐसा कुछ है। इस क्वेश्चन को भी हम बेस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्राई टू सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने जो डेफिनेशंस लर्न किया उस डेफिनेशंस के बेसिस पे लर्न करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log ऑफ बेस 7 अगेन इनटू log ऑफ 7। हमारे पास 3 log वाले का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं सॉल्व, राइट। सो दिस इज 7, दिस इज 7, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमें उसको 1 माइनस इतना कुछ करना है प्रूफ, ठीक है। LHS ये है, राइट। वी हैव LHS हमारे पास ये है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, है ना। ये वाले टर्म को ट्राई टू सिंप्लीफाई करते हैं ना। ये अगर टर्म सॉल्व हो जाए तो अपन ये तो कर ही देंगे सॉल्व, है ना, ठीक है। तो दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज एन, अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो अगर ये वाली चीज़ को, तो अपन क्या कर सकते हैं, 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू 7 का पावर हाफ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगेन मैं करूँ तो log 7 बेस देन log 7 अंडर रूट 7 एंड दिस कैन रिटर्न अंडर रूट 7। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इसको खोल लूँ तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ पूरे टर्म को, सो 7 पे पावर हाफ है, देन अगेन एक 7 पे पावर हाफ टू पावर ऐड प्लस ऐड हो जाएगा, है ना, हाफ टू प्लस हाफ हो जाएगा, और फिर तीसरे पे भी हाफ टू पावर हाफ 3 टर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसा बनने वाला है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो दिस कुछ ऐसा कुछ बन के आ रहा है 7 टू पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको मैं खोलूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये, है ना। 7 पावर अगर इसको खोलूँ तो हाफ निकल आ रहा है, निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और है तो 2 + 2 1/4 आ रहा है, अगेन इसके ऊपर एक और पावर है ना, रूट है, तो दिस इज 1/8 बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, एलसीएम लो तो 8 बन रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ 7, ठीक है, एंड दिस इज 7 टू द पावर एलसीएम 8 आया, ठीक है। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो 4 + 2 6 + 1 7, सो दिस इज 7 टू द पावर 7/8 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो इसको और को सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज log 7 log ऑफ 7 बेस 7 टू द पावर 7/7। तो नंबर एंड बेस बोथ आर सेम, तो कुछ ये सिर्फ ये बच रहा है ना, हमारे पास क्या बचेगा। सो दिस इज log ऑफ 7 टू द पावर 7/8 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 7, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, दिस टर्म फॉर 1, ठीक है। ये तो टर्म 1 हो गया, एंड यहाँ पे क्या है log 7 टू द बेस 7 माइनस log ऑफ 8 टू द बेस 7 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। ये 7/8 है तो इसको कैन रिटर्न एज 7 - 8, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 7 टू से बेस एंड नंबर दोनों सेम है, दिस कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 8 टू द बेस 7, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस log 7 बेस 7 टू द पावर 3। तो 3 को मैं इधर लिया हूँ तो दिस विल बी 1 माइनस 3 log 2 बेस 7, ठीक है, log 2 बेस 7। सो वी गॉट RHS, ठीक है। होप यू लर्न द कॉन्सेप्ट, है ना। कैलकुलेशंस को करो, है ना, अंडरस्टैंड करो, है ना, बस प्रॉपर्टी यूज करना है, बस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। सो यू गॉट द लर्न दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, है ना, राइटली, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशंस बताया, है ना, मैंने आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी बताया, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफिकल फंक्शन वो भी बताया, ठीक है। देन हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए, देन वी कम टू प्रॉपर्टीज, देन प्रॉपर्टी हमने लर्न किया, है ना। सो है ना, इन 2 लेक्चर्स वी ट्राई टू सॉल्व, है ना, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। अब जो नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू डू दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, राइट। लॉग के इक्वेशंस को हम कैसे ट्राई सॉल्व करेंगे एंड लॉग के इनइक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बाय दिस वे, है ना, we just conclude the understanding of basics of log,
ठीक है। वीक 6 ऑफ लॉग को हमने समझा बाय 2 लेक्चर्स, ठीक है। अगर ये दोनों लेक्चर्स आपको समझ में आए हो तो आप है ना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, एंड कीप लर्निंग लॉग, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला आगे, है ना, आपके हर एक टॉपिक में, हर एक एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। क्लास 11th में तो पार्ट होना ही है ना हर एक एवरी चैप्टर्स में, और क्लास 12th में और ज़्यादा यूज होना है इस फंक्शन का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। वैसे आप देखोगे सिलेबस में ये काफ़ी पीछे दिया हुआ है, पर दिस है ना, दिस नॉलेज ऑफ लॉग, knowledge of all the function, knowledge of modulus function, knowledge of trigonometry, everything very very important है ना। ये इनिशियल में ही आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फेस एवरीवेयर यू विल फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए ट्राई टू सॉल्व डू द लॉग इन इनिशियल, राइट। तो चलो एंजॉय करो, लर्न करो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।